हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So I'm back with the next video of PRMO 2019 solution. So guys, we are currently solving 5 marker questions, and the next question, the question that we are going to see in this video is based on number theory, and it's a bit complicated, guys. There's not any simplified system or a method to solve this question. So it's an arbitrary kind of question, we'll see. Okay, so before beginning, let me just request you guys to please solve the question alongside. थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे because this particular question is not that systematically done, right? तो इसमें हमें थोड़ा सा values put करके ही solve करना पड़ेगा and to do some एक methodology इस तरह से follow करेंगे कि हमें best guess proper logical way में सोच के करके निकालना पड़ेगा. But there is not a mathematical proper way to find it properly, right? Okay, let's see the question, guys, without wasting any time. Okay, let me show you the question. Okay, here it is, guys. So 26th question, it says, guys, the positive integers x, y and z satisfy the relation xy plus z has to be 160. Okay, x into y plus z is 160 और हमें x plus yz का minimum value calculate करना है, guys. We have to calculate x plus yz का minimum value, right? So let us start some cases, guys. करना ही पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है, right? So let us start with the values of z. Z को put करते हैं and we'll see क्या x और y की value put करें. In this case, guys, अगर हम z fix करते हैं, right? तो then we can think कि x y में x और y क्या हो सकते हैं और y को क्या put करें so that x plus yz is minimum. उसके correspondingly हम सोचेंगे, right? So let us say कि z को 1 लेते हैं, guys. First case, we'll start with this z equal to 1. What will it mean? xy का वैल्यू क्या आएगा, गाइस? You'll see that xy का वैल्यू कितना आ रहा है? 159, right? So now what does xy equal to 159 mean? तो गाइस 159 को हमें ब्रेक करना है. Now keep this thing in mind in such a way that x plus yz होने वाला है. z 1 है ऑलरेडी, तो you want to keep y minimum and x बढ़ाना चाहोगे थोड़ा सा so that उनका सम मिनिमम हो. तो एक्स वाई का फैक्टर क्या बनेगा, गाइस? 519. ये तो 3 पे डिवाइड होता है सिर्फ. सो सी गाइस, 159 के ओनली फैक्टर्स क्या बना सकते हो? एक तो आप सोचोगे x को 159 रखें, y को 1 रखें. अगर y को 159 रखा, x को 1 रखना पड़ेगा. In both possibilities you'll get x plus yz as 160. बड़ा मिलेगा. So you will try to break it down into smaller terms, right? So guys, what we'll do is x को रखेंगे हम 53, right? y को क्या रखना पड़ेगा? 3. In this particular case, guys, you can reverse this as well because z 1 है आपका. In any case, you have to do x plus y, right? जब z आपका 1 है यहाँ पे, in this equation, when the z value is 1, x plus y को ही तो minimize करना है ना anyways. So factorize ही करोगे इसको. So guys, in this case, what is x plus yz that you are getting minimum? 56, right? So far it is the minimum value that we have found for the first case, right? दूसरा केस तो 159 plus 1 160 आता. Now let us see for z equal to 2. Okay, z equal to 2 के लिए guys xy कितना हो गया? 158. So I have to factorize 158 in such a way कि x मिनिमम हो जाए, y ज्यादा हो जाए, सॉरी x ज्यादा हो जाए, y छोटा रखें. तो गाइज इसमें क्या होगा, देखो 77 इंटू 2, 79 इंटू 2, 158 आ रहा है ना, दैट इज 79 इंटू 2, ओनली 2 फैक्टर्स, राइट? 79 इंटू 2. तो अगेन वही लॉजिक, 79 और y को 2 रखना पड़ेगा. वाई आई एम कीपिंग y एज द स्मॉलर वन. 158 इंटू 1 रखते तो 158 प्लस 2 हो जाता, राइट? सो डजंट मेक एनी हेल्प. तो तोड़ना तो है ही फैक्टर्स में छोटा करने के लिए. तो 79. तो गाइज व्हाट इज x प्लस वाई जेड इन दिस केस? z2 है, y2 है. सो 79 प्लस 4 you'll get 83, राइट? आपको ये मिल जाएगा. You can see 79 plus 4 you'll get 83. So so far guys your 56 is the largest, smallest, right? That we have to see. एक के करके देखते चलते हैं. We'll get some idea. Z को 3 रखेंगे तो guys xy कितना आ जाएगा? You'll get 157. 157 को तो guys ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, right? So in this case x plus yz क्या आ जाएगा? मतलब 1 into 157 ही कर पाओगे ना.
सो 157 प्लस 3 इंटू 1 तो 160 हो जाएगा. सो नो यूज, 157 को तोड़ नहीं सकते हो, प्राइम नंबर है, राइट. देन यू कम टू z इक्वल टू 4. So xy is equal to 156, right? So guys, to break down 156 you have multiple factors because 156 के कई factors बन सकते हैं. But the point is you'll try to break it down so that guys x को बड़ा रखोगे और y को छोटा, but इतना छोटा भी नहीं कर सकते कि x ज्यादा बड़ा हो जाए, 56 को क्रॉस कर जाए. Now keep thinking in a way कि मेरे को x को 56 से छोटा रखना है, right? Now what are the factors of 156? But at the same time y को इतना बड़ा भी नहीं होने देना कि 4 से मल्टीप्लाई होके बड़ा हो जाए, राइट. सो लेट मी शो यू गाइस 156 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, देखते हैं साइड पे. दैट इज 2 स्क्वायर 3 इंटू 13 आई गेस, है ना. ये बनता है 13 इंटू 3 39 इंटू 4, राइट. दैट इज वर्किंग. तो गाइस अब देखो, कीप दिस थिंग इन माइंड, मुझे x भी छोटा रखना है, y को भी छोटा रखना है, बट y को तो 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो इनफ छोटा रखना है बट x भी ज्यादा बड़ा ना हो, राइट. सो यू विल ऑब्जर्व कि 26 इंटू 4 बन रहा है, तो सॉरी 26 इंटू 6 बन रहा है, तो राइट. देखो 4 से मल्टीप्लाई जो नंबर होना है दैट शुड बी स्मॉल. लेकिन अगर आपने देखो एक मैंने फैक्टर बनाया 26 6, लेट मी शो यू द केस. तो x को रखते हैं 26, y को रखते हैं 6. सो व्हाट विल दिस रिजल्ट इन, देखो. सो व्हाट इज दिस रिजल्टिंग इन, x प्लस वाई जेड कितना आएगा, देखो 26 प्लस 24 दैट इज कमिंग आउट टू बी 50. अब मैं 56 से छोटा मिल पा रहा है, राइट. सो नाउ दिस इज माई स्मॉलेस्ट केस. तो गाइज अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैंने y को 6 से बढ़ाया या छोटा किया तो x 26 से बड़ा हो जाएगा, सीधा ही बढ़ जाएगा ना. 13 इंटू 2 हो रखा है अभी, 13 इंटू 3 करता, अगर मैं 13 9 इंटू 4 कर लेता, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 39 55 हो जाता, वो इसको एक्सीड कर जाता 50 को. तो इस 50 से छोटा आप कोई भी x और y का कॉम्बिनेशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर x को छोटा करोगे y बड़ा हो जाएगा, इंटू 4 होके वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद, है ना. So that's why this is coming out to be 50 in this case. तो ये smallest बन पाएगा. Now when you do z equal to 5, you'll see xy कितना आएगा 155. Now what are the factors of 155? You can see 5 into 31. तो इसमें भी गाइस देखो सेकंड केस को तो y को तो 31 रख नहीं, सब 5 नहीं रख सकते ना, 31 नहीं रख सकते ना y को, 31 into 5 बहुत बड़ा हो जाएगा. So for that I'll have to keep this as 31, y को 5 रखना पड़ेगा हमें. And this will again give me how much, 31 plus 25. What is x plus yz in this case, 31 plus 25, so that is giving me 56 again. अभी तक तो ये 50 ही smallest चल रहा है. You can see this 50 is winning till now कि this is the smallest. Okay, z equal to 6 करोगे तो गाइस क्या आएगा, xy is equal to 154. So 154 को कैसे तोड़ें, this is 2 times 77. So 7 into 11 into 2. तो गाइस देखो 154 is 2 into 7 into 11. तो भाई z को क्या रखोगे, मतलब y को सबसे छोटा क्या रख सकते हो, 2 रखोगे, तो दूसरा 77 हो गया, है ना, तो पॉसिबल नहीं है. उससे बड़ा y को क्या रखोगे, 7 रखोगे, 7 इंटू 6 42 प्लस 22 हो जाएगा बचा हुआ, वो भी नहीं हो सकता. फिर 11 तो डालोगे ही नहीं y को कभी, 11 तो क्यों ही डालोगे, राइट. सो यू कैन सी कि x प्लस वाई जेड की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x को बड़ा से बड़ा रख पाओगे, है ना, बट बहुत बड़ा भी नहीं. तो इट विल बी लाइक 14, 14 भी नहीं, क्या रखेंगे 77, y को 2 रखना पड़ेगा, या और कोई हो रहा है, y को 7 रख दिया तो वो 22, आई थिंक दैट विल वर्क. y को 7, इसको 22, 42 प्लस 22 दैट विल गिव यू 64 वैल्यू, राइट. दूसरे केस में बड़ी आ रही थी, अगर आप x को 77 रखते तो फिर वैसे ही एक्सीड हो गया था ना 64 से. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट. अगर 11 रखोगे तो वो y बढ़ जाएगा, y को 2 भी नहीं रख सकते हो. सो यू गेटिंग द आइडिया कि अब कुछ भी करके आपके नंबर्स गाइस बड़े ही होते जाएंगे, 50 से छोटा कर नहीं पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे आप एज यू विल ऑब्जर्व z भी तो बड़ा होता जा रहा है ना, z भी बड़ा होता जा रहा है. दिस विल गिव यू xy इक्वल टू 153. 3 से डिविजिबल है ये, दिस इज 51, मतलब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 इंटू 3
इंटू 17। सो सी गाइस 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 इंटू 3 किया तो 17 इंटू 3 हो रहा है 51 हो गया। तो आप छोड़ नहीं सकते हो ना अभी आप, ठीक है। सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ नंबर स्मॉलर देन 50। तो गाइज इसका नाम, आई अंडरस्टैंड यू माइट बी थिंकिंग ये टाइम पास क्या चल रहा है, इससे आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कि प्रॉपर कैसे बोले, है ना। सो गाइज दिस इज द प्रॉब्लम हियर इन दिस क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉपर प्रैक्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग इट, है ना, कि नंबर में लेके आ पाए कोई प्रॉपरली। इट इज जस्ट कि लॉजिकली आप सोच सकते हो कि हाँ इसके बाद जैसे जैसे जेड बढ़ता जा रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू कीप वाई सच स्मॉल कि फिर एक्स बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर आप वाई को थोड़ा सा भी रखोगे 3 4 तक जाओगे तो वो नंबर ही एक्सीड कर जाता है, राइट। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इसका सम जो लेके आप आओगे गाइस, दैट इज 50, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो दैट इज 50 इन दिस केस। ओके, सो आई अंडरस्टैंड गाइस देयर इज नो प्रॉपर मेथडोलॉजी, तो इसका जो नहीं निकल पा रहा है कि मतलब कोई सॉल्विंग प्रॉपर नहीं बनेगा, है ना। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट ऑफ दैट केस, बट हाँ हम थोड़ा लॉजिकली देख सकते हैं कि आगे चल के आपके वैल्यूज नहीं मिल पाएंगे क्योंकि जेड बहुत बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, है ना। और वाई का वैल्यू अगर छोटा कर भी दोगे आप, बट दूसरा फिर एक्स बहुत बड़ा रह जाएगा। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। सो गाइज आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर अप टू अ पॉइंट। आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू इन मच लॉन्गर, बट इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं बन पा रहा है। And in case you are able to find such a way, please post it in the comment box. I'll be happy to see, right? You can post it in the comment box. I'll have a look at it and see if there is a better solution. I might make a video again then. Okay. I'll do that for sure. Okay. We'll see you in the next video, guys. Till then, keep solving. Okay. All the best. And I hope जितना भी किया guys समझ में आया. You guys got to मतलब understand up to a point. I hope so. Okay. So we'll see you in the next video. Till then, keep practicing, guys. All the best. Take care. Bye bye.